Good afternoon, sir. It's a long presentation. I'll try to complete it as early as possible, but yes, it will take almost an hour. Starting from introduction to the road marking proposals in our Schedule C. So what is road marking? Road markings means whatever is on the horizontal surface onto that is being lines, patterns, इसको words. skip करो, इसको यार skip करो. Everybody knows this. The road marking materials are basically thermoplastic marking, solvent-borne, water-borne, road marking paints, cold-applied plastics, and pre-formed adhesive tapes. Thermoplastic, what is thermoplastic? तो कुछ slides मेरी material के ऊपर है. That is a mixture of plasticizer and resins. It's a fast drying time, highly durable, better retroreflective performance, and service life is 2 to 3 years. So what is basically its composition? Composition is binder, white and yellow का अलग अलग है. इसमें जो है ग्लास बीड्स 30% मिक्स के अंदर ही होती है, 30% ऊपर से स्प्रे होती है. टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो व्हाइटनर है, that should be 10% minimum, and calcium carbonate and inert filler that is 42% maximum. Yellow जो है pigment that is calcium carbonate and inert filter shall be at the option of the manufacturers. सो बेसिकली इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ल्यूमिनेस. जो वाइट प्रॉपर्टी होती है 45 डिग्री टू 65% मिनिमम एज पर एस्टो. इसका ड्राइंग टाइम 15 मिनट के अंदर सूख जाना चाहिए सो दैट ट्रैफिक इसके ऊपर मूव हो सके. स्किड रेजिस्टेंट नॉट लेस देन 45. क्रैकिंग रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल. सॉफ्टनिंग पॉइंट अंडर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड येलोनेस इंडेक्स जो है नॉट मोर देन 0.12 अगेन एज पर एस्टो M249. And further the marking material, whatever material comes onto the site, उसके ऊपर the name, trademark और other means of identification of the manufacturer, कौन सा बैच नंबर है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या, कलर क्या, मैक्सिमम एप्लीकेशन टेम्परेचर, उसके ऊपर कितने पे लगाना है वो लिखा हुआ होना चाहिए. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ हीटिंग टेम्परेचर. सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, व्हाटसोएवर द मटेरियल कम्स उसका सैम्पलिंग भी होना है एंड टेस्टिंग भी होना है. And storage life should not be more than 1 year. जो another important item है that is glass beads. Glass beads are of type 1 and type 2. Type 1 जो होता है वो इसके अंदर मिक्स होता है थर्मोप्लास्टिक पेंट के ऊपर, and when we lay that remain in that paint only. And type 2 जो है that is being spray, उस पे spray होता है after laying of the thermoplastic paint. इसकी भी प्रॉपर्टीज है which we should take care, that is roundness. The glass bead shall have a minimum 70% true sphere. Refractive index should have minimum 1.5 and free flowing properties होनी चाहिए. फ्री फ्लो का टेस्ट कैसे होता है? That has also been specified in IRC 35 कि 100 ग्राम beads evenly in 100 mm diameter glass disc के अंदर इसको कैसे स्प्रेड है, इसको टेस्ट करना है. Then only we should have permit onto the site. Gradation requirement, as I shown this, that gradation requirement should also be ensured. And contractor shall furnish to the engineer a copy of certified test report from the manufacturer of glass beads obtained from a reputed laboratory showing results of all tests जो अभी तक मैंने दिखाए हैं specified herein, and shall certify that the material meets all requirements of this specification. However, if so required, these tests may be carried out as directed by the engineer in charge. Application of thermoplastic paint जो minimum है 2.5 mm thickness लगाना है until unless it is specified. Otherwise जो इसका life period है वो कम हो जाता है. Then finished properties. This once it has been laid, what should be its properties? This type shall not slippery नहीं होना चाहिए. Marking shall not lift from the pavement in freezing weather, and then proper drying and strip show no appreciable deformation up to the surface, road surface temperature, not the atmospheric. The road surface का temperature up to 60 degree. The making shall not deteriorate by contact with sodium chloride and calcium chloride. Making the stripe or marking shall maintain its original dimensions, and its colors
conform to IS color number 356 as given in IS 164. This solvent based जो है generally हम construction sites पे लगा सकते हैं, and it's refer to the clause 803.3.1 more specification, and it should conform to grade 1 as per IS 164. Then cold applied plastics. ये कलर मार्किंग जहां भी करनी होती है, येलो करनी है या ब्लू करनी है, देयर कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक्स होता है. इवन अभी जो रेस बार मार्किंग टीबीएम हम कर रहे हैं उसको भी वी हैव रिकमेंडेड इन एनएचए सर्कुलर जो 18 मार्च को इशू हुआ है कि वो आप कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक्स में करें. और जो शेड्यूल बी एंड सी सर्कुलर हमने इशू किया था उसमें भी हमने ये कहा था कि आप जो ट्रांसफर ये जिब्रा मार्किंग है wherever school children are there, even that can be cold applied plastics आप अप्लाई कर ले, बिकॉज इसमें जो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है एंड इसमें स्लिपरीनेस नहीं होता है. इसमें बाइंडर कंटेंट उसी 25% है एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज 20% मिनिमम, जबकि थर्मोप्लास्टिक पेन में 10% था. सो दैट्स व्हाई इट्स ड्यूरेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई. कैल्शियम कार्बोनेट इनर्ट फिलर थी 16% ओल्ड. जो इसमें ग्लास बीड्स है उसमें उसका भी एज थर्मोप्लास्टिक में था 250 माइक्रोन में कितना है, 150 माइक्रोन में कितना, राउंडनेस अगेन 70%, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज सेम एंड फ्री फ्लो प्रॉपर्टीज इज आल्सो सेम. देन प्री फॉर्म टेप्स, ये अभी तक हमने बहुत कम जगह यूज किया है बट इट इज ऑलरेडी इन द स्पेसिफिकेशन. इट्स कॉन्टिन्यूस रोल आता है एंड इसका जो एप्लीकेशन है इक्विपमेंट से लगता है ड्राइंग और क्योरिंग पीरियड जो है don't require anything because you fix it and then traffic can start move. Majorly it is being used object marking या transverse lines में इसको use करते हैं. This is the basically marking of preformed tapes. How it is being applied, pre-marking, tape application, and then final compactions. Then performance assessment and monitoring. Because this is basically visibility, reflectivity, whatever the performance criteria is. For the marking that is being given, it depends upon that how much driver can view during 2-second travel time at what speed. For example, our national highways are for 100 kmph. Then driver should can see it at the 56 meter and he can react accordingly. And in case of expressway, it will be 67 meter. This is the retroreflectivity, means whatever the headlight goes and it reflects back to the driver's eye. That is being basically measured and according to the visibility is ensured. External factors that influence marking performance. What is the material composition? I have talked to different manufacturers जो उन्होंने ये कहा है कि even 10% और 20% जो टाइटेनियम ऑक्साइड है अगर उसके हिसाब से अच्छे से एज पर साइट के ऊपर लगाया जाए तो it gives longer life of 2 to 3 years. एज इट इज मटेरियल कंपोजिशन है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, एप्लीकेशन मशीन का यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, रोड सरफेस को क्लीन किया है कि नहीं किया, एंड इमीडिएटली ट्रैफिक आप परमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आपने 15 मिनट आधे घंटे के बाद परमिट किया तो इट हैज गॉट लॉन्ग लाइफ. परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, वियर ड्यूरेबिलिटी क्या है, डे विजिबिलिटी क्या है, नाइट विजिबिलिटी क्या है, नाइट विजिबिलिटी ड्राई, नाइट विजिबिलिटी वेट, and what is the skid resistance. These are the performance parameter where it is to be tested. जब visual assessment होता है कि अगर 90% of the area is intact, then visibility is definitely where visibility अच्छी है, and if below 70% of intact as it is shown in the picture, then it's almost visibility reduced drastically. Daytime visibility under the daylight or under road lighting, how much driver can see, its parameter is there that it should be 130 mcd per square meter per lakhs in the case of concrete road, and in the case of asphalt road it should be 100. Similarly, nighttime visibility performance parameter for dry, in the case of dry initial 7 days up to 100 kmph it is 250 and above 100 is 350. And after up to 2 years tak it should be 120 and 150. Wet retroreflection, this is very very important, particularly during the night time. As you see the picture shows कि daytime में कैसे है and night time में कैसे है.
So in this case, initial 7 days, it should be 100, and after that it can be 50. स्किड रेजिस्टेंस बेसिकली जो ये स्कूल के अगर हम कुछ भी मार्किंग लगा रहे हैं या अर्बन लोकेशंस में हैं तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्लिपरी हो जाएगा. तो अर्बन सिटी में इनिशियल 7 डेज में 55 एंड मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल शुड बी 45. इवेल्युएशन कैसे करना है? अगर हमको इसको रेट्रो रिफ्लेक्टोमीटर लेके जाना है तो बिकॉज इसमें 3 क्राइटेरिया थे, अप टू 3 किलोमीटर, 3 to 16 किलोमीटर एंड मोर देन 16 किलोमीटर. सो आई एम शोइंग ओनली मोर देन 16 किलोमीटर कि इसमें आपको 3 अलग अलग सेक्शंस मिनिमम सेलेक्ट करने हैं एंड हर एक सैंपल में 20 लोकेशंस में यू हैव टू डिटरमिन you have to see the retro reflectivity measurement करनी है, and then average we have to see that it should meet the criteria as I have shown earlier. Then लीजेंट्स का कैसे करना है? लीजेंट एक लीजेंट्स को हमने देखना है, सिंबल ऐसे ट्रांसवर्स लाइंस को हमारे को अलग अलग देखना है एंड क्रॉसिंग्स को भी वी हैव टू इंश्योर. नाउ व्हाट इज द रोड मार्किंग कलर्स? कलर्स आर से व्हाइट कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड एंड पर्पल कलर. नाउ रोड मार्किंग क्लासिफिकेशन. ये लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग, हैजार्ड मार्किंग, ब्लॉक मार्किंग, एरो मार्किंग, डायरेक्शन मार्किंग. Longitudinal marking is basically along the highways. It can be broken line, single or double continuous line, or continuous line. This is given in the IRC 35 लास्ट में annexure है. इसमें डिफरेंट टाइप की लाइन है, LM01 to LM17 and further LM31 तक है. Basically, according to our requirement, we should specify in our contract, in our schedule, that which line we are preferring. कौन सा लाइन हमारे को लगाना है? 100 का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है. इन लास्ट ये स्पेसिफिकली मैंने गाइडलाइंस भी दिया कि ऑन NHI वर्क्स में अभी एज डायरेक्टेड बाय चेयरमैन सर कि हमको क्या यूज करना है. देन ट्रांसवर्स ऑफ मार्किंग, दीज आर द मार्किंग. स्टॉप लाइन है, गिववे लाइंस है. दिस इज अक्रॉस द हाईवे. दिस इज फॉर डिफरेंट टाइप्स जो है TM01 to TM08. डिफरेंट टाइप्स की लाइन है, उसमें विड्थ है, उसकी थिकनेस है, उसका कलर है. देन हैजार्ड मार्किंग. हैजार्ड मार्किंग इज बेसिकली मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. मींस wherever the traffic is diverting from main carriageway to slip road or service road and then merging back. These are basically hazards where side swipe accidents happen. So what kind of marking we have to do? That is hazard markings. So different kinds of the markings are again there, HM01 to HM09. And this is basically ladder hatching and different continuous line in case of 2-lane dual carriageway. So that kind of continuous lines are to be marked. It is given with the abbreviation HM16, HM17, HM18. And then further it is HM19 to HM21. In the HM26, 27, 28, these are basically raised profile marking which was introduced in IRC 35 for the first time, and कुछ projects में लगाया भी है इनको, and this has given very encouraging results. Then block marking. Block marking is basically where the traffic is not permitted to stop. The different kind of rectangular blocks are there. Then box markings are there. Box marking, if some of you have traveled onto Dwarka Expressway, so this has been marked where the mergings are or of the traffic is there, and it is very effective that when the traffic is merging, they know that now they can't stop there. Then arrow painted on carriageway. This is very, very important, that you have to go straight now, or you have to take left turn, or you have to take a right turn. Different kind of arrows, unka dimension, unka shape. This is being given in this table from AM1 to AM03, and further it has gone to AM24. Then directional marking. Depending upon the different directions, you have to stop, you have to slow, no entry. These kind of marking have also been, now it has been given directional marking in IRC 35.
Then facility marking for the buses, for the trucks, for the taxis. These facility markings have also been specified in IRC 35. Then lane marking sections and zone. This is basically when we are marking longitudinally, then we have to divide into sections or zones according the lane marking is to be done. That is normal zones or normal sections, warning zones or warning sections, and no overtaking zones. This is basically depending upon the visibility distance and warning side distance. What is visibility distance? Minimum visibility distance, it is defined as distance at which an object of 1.05 meter above the carriageway can be seen by the observer by the driver. And no overtaking zone when the distance is less than this. So warning zone is between no overtaking zone and minimum visibility zone. So this is basically particularly यहाँ पे show किया गया है जब जो है it is not possible for the driver to see to the vehicle moving ahead of it or a vehicle approaching on that direction. There it is being given that no overtaking lines are to be marked, and then warning zones where this dash line and continuity line is given, and further it is only dash line. And arrows are very, very important. This has also been given in the end that how we have to approach in case of national highways. And how it is to be applied on road marking zones. जो अभी हमने 18th अप्रैल को सर्कुलर इशू किया ब्लैक स्पॉट्स का, उसमें क्या साइन लगाने हैं, क्या कहाँ पे जो है ये दिस काइंड ऑफ नो ओवरटेकिंग जोन्स मार्क करने हैं. We have already given this kind of cross-sections with all complete details. In case of 4-lane road, 6-lane road, 2-lane road, this has also been given with the criteria. Even on the intersection, how it is to be applied, because if it is a curve, particularly bypass mein ya hill road mein, that curve has to be, that median opening has to be onto the curve only. So what kind of safety measures, mitigation measures we have to provide before even the opening of the traffic, that has already been given. And if it is already a black spot or accident prone location, then these measures can be provided. Markings for road links. So center line, warning line, edge line, and no overtaking line. This is being discussed. Where the center line is to basically separate the opposite stream traffic. Further, I will not deliberate. Then traffic lane, basically traffic lane to divide when it is 4-lane, 6-lane. Then there is no center line. It's because median is there. Then only a traffic lane is being marked, whatever lane marking is there. And no overtaking lines, I have already discussed what kind of it is a continuous line. It can be single solid or a double solid lines. Then border or edge lines, these are on the edges towards median side or onto the shoulder sides. It is a continuous line. Then longitudinal marking for undivided carriageway. This is basically, as I have shown, LM01 and LM02, that is being given. It can be 100 mm wide or 150 mm wide. And then traffic lane has 3 meter, 6 meter. When it is being in the hazard zone, then it is 6 meter and 3 meter. So this is basically longitudinal marking on undivided carriageway. Yet इसमें टेबल भी दे रखा है कि if the carriageway is less than 5.5 and more than 7 meter, more than 11 meter, which kind of edge line आपने लगाना है, carriageway में center line कौन सा लगाना है, warning section में क्या लगाना है, normal में क्या लगाना है, no overtaking section में क्या लगाना है. Everything has been given. The only thing is whenever we are framing these DPRs or when we are framing the schedules, we have to give these details, then only it will be marked. Then ये sketch भी दे रखा है कि how we have to do it. Earlier ये था कि 5.5 मीटर में जो है हम ये नहीं लगाते थे जो edge lines हैं. अभी if it is less than 5.5 मीटर जो हमारा slip roads है तो we have to mark edge lines. And if it is 5.5 meter, exactly 5.5 meter or more, then we have to have it center line also. Then longitudinal marking for divided highway. Same is the criteria. It is LM1 and LM02. LM1 is again 100 mm wide and LM2 is 150 mm wide. And ये उसका pictorial pictures भी हमारे को IRC 35 में दे रखी है कि how it is to be marked, edge line, center line,
वार्निंग सेक्शन में कैसे लगाना है, नॉर्मल सेक्शन में कैसे लगाना है, and or no overtaking section में कैसे लगाना है, that is been given with the lane marking description as I have shown in the beginning. Then road studs. Road studs में IRC 35 and IRC SP 84, IRC SP 87, there is a confusion. IRC 35 says कि normal section में भी, warning section में, no overtaking section में हमारे को अलग अलग इंटरवल में अलग अलग टाइप के जो है रोड स्टड्स लगाने हैं. लाइक दिस, इट्स अ 2-lane हाईवे. इसमें सब सेक्शन में इन्होंने दिखाया है. एंड इट इज इन द केस ऑफ डिवाइडेड हाईवे, सेम हैज बीन गिवन. एंड रोड स्टड्स फॉर रैम्प, स्लिप रोड्स, वन वे स्ट्रीट मींस जो रैम्प्स है हमारे इंटरचेंज में रैम्प्स हैं या स्लिप रोड्स के ऊपर है, हाउ दैट इज टू बी, रोड स्टड्स हैव टू बी फिक्स्ड. ये भी इसमें दिखाया है. रोड स्टड डायगोनल शेवरन मार्किंग में कैसे लगाने हैं और कौन से कलर का लगे. इट इज टू बी रेड कलर ओनली. इफ इट इज लाइक एंट्री एग्जिट रैम्प्स है तो वी हैव टू हैव ग्रीन रोड स्टड्स. ये कितने डिस्टेंस में लगाने हैं शेवरन मार्किंग के स्टार्ट से लेके वेयर एवर दी दैट वी हैव जो स्टार्ट किया है हमने आउटसाइड जाने के लिए, एग्जिट के लिए, अप टू दैट नोज वी हैव टू पुट द ग्रीन कलर. फर्दर आई वांट टू से बेसिकली जो अभी मिनिस्ट्री ने जो सर्कुलर अमेंडमेंट्स निकाला है 24 दिसंबर 2024 में, उसमें उन्होंने नॉर्मल सेक्शन एंड नो ओवरटेकिंग सेक्शंस में ये परमिट किए हैं कि आप स्टड्स लगाएंगे. सो स्टॉप लाइन बेसिकली जो भी आपके इंटरसेक्शंस हैं, जो भी क्रॉस रोड्स हैं, उसमें आपको स्टॉप लाइन लगाना है. स्टॉप साइन कहाँ लगाना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है. उसकी डायरेक्शन क्या होनी है. सो इट शुड बी, इट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड कि आपको स्टॉप मार्किंग डबल लाइन लगानी है, एक पूरा जो है क्रॉस रोड पे भी लाइन लेके जानी है, एंड 1.5 to 6 मीटर पे आपको एक स्टॉप जो है साइन लगाना है, एंड गिव वे साइन लगाना है, गिव वे मार्किंग लगानी है. बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड difference between give way marking and stop marking. So it has been then specified that invariably on the village roads or the ODR roads, we should put stop line and stop marking only. And the criteria is also given that 120 meter की visibility होनी चाहिए from a distance of 4.5 meter. So if it is less than that, तो आपको stop marking लगाना है, or if it is more than that, then it can be give way marking. But for the sake of understanding, it has been further specified that it is better to have stop marking on this village road and ODR roads. And wherever we can provide the channelization, there only we should give the give way marking and give way signs. Marking for transitions and lane change. So wherever a transition is there or lane change is there, means wherever we are going from 2-lane to 3-lane, or 2-lane to we are exiting, or we are merging from slip road or service road to the main carriageway, there we have to make this, we have to mark these lines. So this is basically given that up to length कितना है diagonal shaft का, less than 10 meter, more than 22 meter. Minimum diagonals कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 6 लगाने हैं. If the length is more, diagonals can be definitely more, but minimum should be 2, 4 or 6. This has been specified. रेस प्रोफाइल एज मार्किंग जो मैं आपको बता रहा था, अभी बहुत कम हाईवेज पे हमने इस्तेमाल किया है. उसमें 500 mm to 200 mm का गैप है. It can be 8 mm high. 8 mm high is above the normal pavement edge line mark, means 2.5 से ऊपर. 2.5 इंक्लूसिव नहीं है. And its width can be 150 mm to 200 mm. 150 mm in the case of national highways and 200 mm in the case of expressways. And this is also very important कि अगर narrow bridge है, particularly जो हमने 2-lane से 4-lane stretches किए हैं, उसमें existing bridges अभी भी वो 2-lane के ही हैं. Number of bridges may be only without the paved shoulder is through onto the bridges. So in that case कैसे आपको marking करनी है, that has also been shown, and इसकी कितनी tapering होगी, 1/40 होगी, 1/50 होगी. 1/40 is the minimum, but desirable is 1/50.
दैट्स व्हाट डायमेंशन इज गिविंग एंड मर्जिंग एंड ऑल, ये दे रखा है कि 80 से ज्यादा स्पीड है तो 1 in 50 और मिनिमम इज 1 in 40 डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड. हैच मार्किंग एज इन द केस ऑफ जो है आपको दिस काइंड ऑफ हैच मार्किंग यू कैन पुट इट वेयर एवर देयर इज अनयूजुअल सिचुएशन. लेन रिडक्शन एंड नरिंग, जो लेन बैलेंसिंग का कंसेप्ट है, जैसे हम 4 लेन से 6 लेन गए, 6 लेन मीन्स मेन कैरेज वे जो है 4 लेन का है, 2 लेन हमने स्लिप रोड बनाया, तो हाउ वी हैव टू गिव दी लेन रिडक्शन एंड लेन नरिंग, दैट इज बीइंग गिवन. एंड इसका एक टेबल भी है, आई विल शो इट इन द लास्ट, दैट हाउ मच लेन वी कैन परमिट फाइनली, लेन रिडक्शन एंड लेन नरिंग. Arrow and word messages, directional arrows like this, turn left. I request the DPR consultants and the contractors, they should put all those things into our contracts now, because we don't see these kind of things, turn left, turn right on our national highways. And the NGOs, they just put all those things and then make it that yes, we have made this intersection safe. Although these all provisions are there in IRC 35. Directional arrows, you can see that how the directional arrow has what should be its length, and it is given that how much length it should be there, 25 meter for 32 meter arrow. So if इस तरह बड़ा हम एरो लगा देंगे तो दूर से ही चमकेगा एंड ऑलरेडी उसको पता लग जाएगा जो ट्रैफिक आ रहा है कि मुझे राइट स्टोरेज लेन में जाना है या मुझे सीधा जाना है. द एक्सीडेंट जो राइट स्टोरेज लेन में जाके देन हिट करते हैं मीडियन को सामने, that will definitely be addressed if you will put proper जो है arrows लगाएंगे and यहाँ पे studs लगाएंगे. Word messages I have discussed. Then marking on at grade intersection. अब ये केस स्टडीज भी दे रखी हैं कि एट ग्रेड इंटरसेक्शंस में हमको कैसे कैसे मार्किंग्स करनी है. लाइक दिस, अगर ये सिंपल विड्थ है उसकी तो कितनी मार्किंग करनी है कि उसमें जो है मिनिमम सी जो है डायमेंशन दे रखी है, मिनिमम विड्थ 3.5 मीटर होना चाहिए, 4.5 से 5 मीटर होना चाहिए. 5 मीटर का बेसिक पर्पस होता है कि अगर एक व्हीकल वहां पे खराब हो गया तो यू कैन गो थ्रू दैट. फिजिकल आइलैंड है या गोस्ट आइलैंड है, अकॉर्डिंगली इट हैज बीन गिवन. एंड अभी हमने सैंपल शेड्यूल बी एंड सी में वी आर स्पेसिफाइड कि आपको 50 मीटर तक या 100 मीटर लेंथ तक आपको जो क्रॉस रोड को डेवलप करना है. एंड इफ दैट इज बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू लाइक दिस इट हैज बीन शोन, तो मार्किंग भी इजी हो जाएगा. एंड जो एक्सीडेंट्स हमारे हैं इंटरसेक्शंस पे होते हैं, दैट विल आल्सो बी एड्रेस्ड इवन एट द डीपीआर स्टेज इटसेल्फ. जो ये बॉक्स मार्किंग मैंने दिखाया, तो यहाँ पे जो है जनरली अर्बन सिचुएशन में दिखाते हैं, या जहाँ पे ये मर्जिंग डीमर्जिंग और ट्रैफिक है, दैट नो व्हीकल शुड स्टॉप हियर. सिंपल जंक्शन जो ये क्रॉस रोड में मिलता है या सर्विस रोड में, ये सर्विस रोड में आके मिलता है, तो उसमें बेसिकली जो नीचे मार्किंग दिखाई गई है B4 B5 ऑन द क्रॉस रोड, इट इज ऑन टू द जो स्पीड हम्प है उसके ऊपर दिखाई गई है. एंड जो हैजर्ड जोन है, वार्निंग जोन है, उसकी मार्किंग अलग है. एंड आफ्टर दैट यू कैन से इट्स अ नॉर्मल सेक्शन. वाई सेक्शन है, वाई इंटरसेक्शन है, तो उसमें कैसे हमारे को मार्किंग देनी है, दिस हैज आल्सो बीन शोन. देन गोस्ट आइलैंड जंक्शन, अगर गोस्ट लैंड है, मिनिमम एरिया जो है वो 6 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए. कोई भी आइलैंड है अगर उससे छोटा होता है तो देन उसकी विजिबिलिटी नहीं आती है. तो गोस्ट आइलैंड कैन बी प्रोवाइडेड. इवन गोस्ट आइलैंड भी जो होता है वो 2.5 मीटर, जो उसकी एक लेग है 2.5 मीटर जो रेक्टेंगल बन रहा है, 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर की होनी चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली दिस काइंड ऑफ मार्किंग अगर हम करते हैं और उसके बाद में हम स्टड्स लगा देते हैं और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हैजार्ड मार्कर का साइन लगा देते हैं, तो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ेगी नहीं, बिकॉज वी डोंट डू ऑल दोस थिंग्स. एंड देन जो गाड़ी है इसके ऊपर, ट्रैफिक है इसके ऊपर चढ़ता रहता है एंड एक्सीडेंट्स होते हैं. दिस काइंड ऑफ गोस्ट आइलैंड जनरली विदेशों में तो मैंने देखा है, इंडिया में अभी घाट सेक्शन में कहीं कहीं लगाना शुरू किया है. दैट 2 लेन में भी, इसमें भी स्टोरेज लेन इसमें बना दिया है सो दैट राइट टर्न में जा सके. एंड दिस काइंड ऑफ सम अरेंजमेंट आई हैव प्रपोज्ड इन केस ऑफ केरला, जहां वो नहीं थी, स्टोरेज एग्जिट लेन की जगह नहीं थी. एंड आई गॉट बैक दैट इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के, ये एक अच्छा काम हुआ है. दैट कैन डेफिनेटली, जब सारा उस पर हो जाएगा NH 66 में, विल कम टू नो हाउ मच सक्सेस वी हैव अचीव्ड. इस अगेन फिजिकल आइलैंड के चारों तरफ जो है
फिजिकल आइलैंड के बाहर इसमें क्लियरली शो कर रखा है कि 1.5 मीटर जो पेव शोल्डर है, जो फिजिकल आइलैंड है उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाहर होगा तो मतलब पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन की वही गलत हो गई, गाड़ी उसको जाके हिट करेगी। तो और उसके बाद हमारे को जो है ये डायगोनल मार्किंग करनी है। जो फिजिकल आइलैंड है 2 लेन के अंदर, उसमें कैसे मार्किंग करनी है। बहुत सारे हमारे जंक्शंस होते हैं जो स्क्यू में होते हैं, एंड इट इज सजेस्टेड कि वहां एक्सीडेंट नहीं हो तो उसको स्टैगर्ड इंटरसेक्शन बनाया जाए। तो स्टैगर्ड इंटरसेक्शन बनाते हैं तो उसमें देन हाउ वी डू द मार्किंग्स, उसमें प्रॉपरली अगर मार्किंग कर दी जाए तो स्टोरेज लेन भी बन जाती है और एक्सीडेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। अगर मेजर डिवाइडेड हाईवे में है तो हाउ वी हैव टू डू द मार्किंग, ये भी इसमें दिखाया गया। इफ यू सी जो LM29 है लेफ्ट साइड में, उसमें कुछ पोर्शन में आपको जो है ब्रोकन लाइंस एंड कॉन्टिन्यूटी लाइन कॉन्टिन्यूस दिखानी है जहां वो पैरेलल ट्रैफिक है। उसका पर्पस ही यही होता है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है या जो एग्जिट कर रहा है वो उसके बाद जो है मेन कैरेजवे पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसको तुरंत डिस्टर्ब नहीं करे। इवन इसमें तो चालान भी होता है, सिंगापुर में चालान होता है, तो दिस इज नॉट परमिटेड। सो अभी अगर हम लगाना शुरू करेंगे तभी पब्लिक विल अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली ट्रैफिक विल मूव स्मूथली। इसके बाद हमने जो 4th आर्म्ड इंटरसेक्शंस है, जो भी हमने ब्लैक स्पॉट के लिए 18 मार्च को सर्कुलर इशू किया है, उसमें हमने ये पूरा लगा के दिया है कि आपको कैसे कैसे साइंस लगाने हैं। उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर वो एक्सीडेंट स्पॉट नहीं है, DPR स्टेज के बाद है और एक्सीडेंट स्पॉट्स नहीं है, तो आप सिर्फ एक साइन हटा देंगे, दैट इज एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन। बाकी साइंस एंड मार्किंग यू कैन डू इट एज इट इज। वो 3 लेग इंटरसेक्शन है, 4 लेग इंटरसेक्शन है, राउंड अबाउट है, एवरीथिंग वी हैव गिवन। Then marking of signalized intersection. This is basically कैसे हमारे को जो है सिग्नलाइज इंटरसेक्शन में कितनी पीछे स्टॉप लाइन लगानी है और जिब्रा मार्किंग करनी है। एक 4 लेग इंटरसेक्शन में कैसे करनी है, जहां पूरे आइलैंड्स हैं उसमें कैसे करनी है, सो दैट वी शुड गाइड द पेडेस्ट्रियन और वी फोर्स द पेडेस्ट्रियन टू मूव इन दिस वे, सो दैट वो मिनिमम पाथ को अडॉप्ट करते हुए सेफली जो है रोड को क्रॉस कर सके। पीछे भी एक वीडियो था व्हाट्सएप के ऊपर, त्यागी साहब ने शेयर किया था कि वो कहाँ जाके वो किसी रिटेनिंग वॉल में जाके रुक गया। तो हाउ द पेडेस्ट्रियन विल गो देयर। सो व्हेन वी आर मार्किंग this zebra marking, we should ensure that pedestrian starting from one end can safely reach to the other end. Then priority and give a marking on roundabouts. ये कैसे राउंड अबाउट पे लगाने, कितनी दूर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लगाने, इट हैज बीन गिवन। अगर सिग्नलाइज ये सिग्नल कंट्रोल राउंड अबाउट है, आप कह सकते हैं हाईवे तो हमारे होता नहीं है, बट जो भी हमारे एलिवेटेड हाईवेज है नीचे, उसमें अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जैसे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे है तो उसमें सिग्नलाइज राउंड अबाउट बने हुए हैं, तो उसमें कैसे मार्किंग करनी है, दैट हैज आल्सो बीन गिवन। ये फिर अगेन हमने 4 आर्म जो है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है जो नीचे रहेगा, या वैसे हमारे हाईवे पे है तो व्हाट काइंड ऑफ मार्किंग्स हमारे को लगानी है, वो भी हमने जो 18 मार्च को सर्कुलर इशू किया उसमें हमने ये दिया है, साइंस एंड मार्किंग्स कंप्लीट। मार्किंग्स ऑन ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस फर्दर, तो इसमें बेसिकली यही है कि मर्जिंग एंड डीवर्जिंग है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया। तो उसमें कितनी लेंथ में आपको शेवरन मार्किंग करनी है, उस कितनी लेंथ में दोनों ब्रोकन एंड कॉन्टिन्यूटी लाइन मार्क करनी है, कहाँ पे आपको ये टेपर लेंथ कितनी रखनी है, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन। दिस केस इज विदाउट लेन गेन एंड लेन ड्रॉप। और अगर लेन ये मतलब सिर्फ स्लिप रोड होता था जैसे 5.5 मीटर है, नाउ बिकॉज अभी हम 5.5 मीटर कर रहे हैं तो वी हैव टू सेपरेट 1 बाय 1 लेन। एक लेन में पीछे ट्रैफिक चला जाता है, एक लेन में जो है ये आपका डैश डैश लाइन और कंटिन्यूटी लाइन के साथ चला जाता है। ऐसे ही मर्जिंग है, ऐसे डीमर्जिंग है। बट दिस पर्टिकुलर केस जो गोस्ट आइलैंड के साथ है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ये मैं भुवनेश्वर गया था, हमारे NH के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो उसमें ट्रैफिक विल फॉलो एग्जैक्टली लाइक दिस। तो इसमें जो है इमीडिएटली जो बहुत बड़ा पेव्ड एरिया है वो नहीं होता है। एंड आई सजेस्ट कि अभी जैसे हम एक्सप्रेसवे में भी 2 लेन एग्जिट बना रहे हैं पूरा, तो वो हमारे को इस टाइप का ही जो है गोस्ट आइलैंड के साथ एंट्री एग्जिट बनाना चाहिए।
ये भी हमने एक मर्जिंग डीमर्जिंग का पूरा विद दी ऑल दो साइंस एंड मार्किंग हमने 18 मार्च को जो सर्कुलर इशू किया उसमें एक स्केच दे रखा है। देन मार्किंग फॉर स्पीड रिडक्शन मेजर्स एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड साइक्लिस्ट। जो स्पीड रिडक्शन मेजर्स है, अगर 2 लेन रोड है हमारा, अभी तो बहुत सारे हम 2 लेन को 4 लेन करने वाले हैं, तो उसमें क्या स्पीड रिडक्शन मेजर्स है दैट इज बीन परमिटेड, रोड हम दे सकते हैं 2 लेन में, तो उसकी क्या क्या मार्किंग करनी है, कितना ऊंचा बनाना है, ये इसमें दे रखा है, क्या साइन लगाना है। ट्रांसफर्स ऑफ मार्किंग विच वी आर यूजिंग इट वेरी वेरी इफेक्टिवली, वो इसका सेट हम हमारे को दे रखा है कि 81 to 100 kmph में 4 सेट लगाने हैं। कितने डिस्टेंस में लगाने हैं, हजार्ड से पहले कितने लगाने हैं, अगर 5 mm हाइट है तो 600 की स्पेसिंग में लगाने हैं, अगर 10 mm हाइट है तो 1 मीटर की स्पेसिंग में लगाने हैं, 15 mm की हाइट है तो 1 मीटर की स्पेसिंग में लगाने हैं। इसका भी जो है हमने फिर अलग अलग जो है 2 लेन 4 लेन विद सर्विस रोड, ये हमने एक जो है कंप्लीट विद दी साइनेजेस, ये हमने एक सर्कुलर जो इशू किया उसमें स्केच दे रखे हैं। ये 2 लेन का है। स्कूल जोन सेफ्टी के ऊपर भी हमने स्पेसिफिकली, ऑल्दो इसका एक कोड आ गया है अभी, बट ये जहां पर भी स्कूल जोन है, अगर उसके सामने हमारा जेब्रा मार्किंग है तो हाउ वी हैव टू ट्रीट, व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स वी हैव टू गिव, दैट हैज आल्सो बीन गिवन इन आवर सर्कुलर। बाइसिकल लेन मार्किंग बेसिकली अर्बन एरियाज में होगा, तो किस टाइप से बाइसिकल लेन मार्किंग करनी है, दिस इज बीन गिवन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो हम डील करते हैं बसेस, ट्रक ले बाई एंड टोल प्लाजा। बसेस लेन अगर हमने स्पेसिफिकली बनाना है तो उसको ही मार्किंग कैसे करना है क्रॉस रोड के आगे। ट्रक ले बाई जो है पहले हमारा जो था वो रेस्ड सेपरेटर था, नाउ वी आर गोइंग विद दिस गोस्ट आइलैंड, सो दोनों मार्किंग हमारे को दे रखी हैं। अगर रेस्ड आइलैंड है तो एज आई हैव शोन अर्लियर, डायगोनल मार्किंग करने जो पेव शोल्डर है उसमें डायगोनल मार्किंग ही होनी चाहिए। अगर आपका रेस्ड आइलैंड पेव शोल्डर के अंदर है तो उसको तोड़ के छोटा करिए या पूरा हटा दीजिए, एंड ये जो है इसमें कंप्लीटली गोस्ट आइलैंड बनाइए। Then toll plaza marking. Toll plaza marking, it is to be done like this कि when it approaches to the toll booth, तो वहां पे ये बिल्कुल सीधा ही जाए, अदरवाइज टोल बूथ को हिट करेगा। आई हैव सीन ऑन नंबर ऑफ प्लेसेस, पर्टिकुलरली जो अभी हम बिना टोल बूथ के बना रहे हैं उसमें अभी मार्किंग ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें क्या उसको और टोल बूथ भी बड़ा नहीं है, सेपरेटर भी बड़ा नहीं है, तो दैट इज वेरी डेंजरस। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि वहां पे मार्किंग जो है थोड़ी बड़ी भी करनी पड़े तो वी शुड डू इट सो दैट वंस इट एंटर इनटू दैट जोन तो वो बिल्कुल इसको उसके पैदल पाथ में होना चाहिए। देन पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस, जो स्कूल जोन का मैंने दिखाया था, अगर कोई स्कूल जोन है तो उसमें किस टाइप की पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो दिस इज लाइक जिगजैग मार्किंग इज देयर, वो भी हमने लगाया नहीं है। अपने हाईवेज पे केरला में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन रोड बनाया था, उसमें लगाया था, दैट इज क्वाइट इफेक्टिव, और स्टेट पीडब्ल्यूडी ने किया था। So that can also be done, that no parking is permitted here. And where it is for restrictions for some time, then the different parking restriction signs are there. वहाँ कर्व को आप पीला कर देते हैं, लाइन को भी पीला ही लगाते हैं। Then object paintings. Whatever objects are there, if it is within the carriageway, जैसे पेव शोल्डर के बीच में आ गया या बीच में पियर आ गया, then ये पूरा जो है हैजार्ड मार्किंग, एंड जो स्ट्रिप्स है येलो एंड ब्लैक, और हाइट जो है ऊपर भी उसमें हमारे को लगाना है इफ इट इज लेस देन 5.5 मीटर, एंड इफ इट इज 5 बियॉन्ड दैट द कैरेज वे एंड लेस देन मोर देन और 5.5 मीटर और मोर, सो देन आपको टॉप में लगाने की जरूरत नहीं है, बट साइड में तो ये लगाना ही है, देन इट शुड बी व्हाइट एंड ब्लैक। ऑब्जेक्ट एडजेसेंट टू द कैरेज वे, चाहे वो आपका कर्व्स हैं, आपकी ड्रेन है, उन सब के ऊपर 500 mm का व्हाइट एंड ब्लैक आपको पेंट करना है, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। देन ये कुछ कर्व इंटरसेक्शंस है, कर्व में अगर इंटरसेक्शंस होता है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। दिस विल डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ द रिवीजन ऑफ IS 35, बट ये कुछ हाईवेज में NHA के कुछ प्रोजेक्ट्स में लगे हैं और दे आर वेरी इफेक्टिव। एंड RO गुजरात में मिस्टर YB सिंह
ने मुझे बताया था कि उन्होंने कुछ स्ट्रेचेस में एज ए ट्रायल येलो ही पूरा इसको मार्क कर दिया था, that was also very effective. So whatever will be there, IRC 35 जो भी रिवीजन है उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा. Now another thing is transverse ribbed bar marking, कि वो येलो करनी है या व्हाइट करनी है. सो येलो जो है रिसेंटली आई वेंट टू थाने, तो ये देखे बिल्कुल नया ही येलो व्हाइट किया हुआ उन्होंने, एंड वो ब्लैक हो गया विद इन नो टाइम, विद इन ए मंथ्स टाइम और 2 months, एंड व्हाइट जो है वो काफी टाइम तक रहता है. तो इट इज सजेस्टेड, और या आप हमको फीडबैक दें, ISC 35 में इसको करा देंगे कि इवन इफ वो ब्लैकिश होने के बाद में यू कैन सी ऑन द वाइट साइड उसके टायर मार्क्स दिख रहे हैं कैरेज वे के ऊपर, बट स्टिल वाइट मार्किंग्स आर क्वाइट विजिबल, एंड द अदर साइड जो येलो मार्किंग है वो तो कुछ दिन के बाद दिखना ही बंद हो जाएंगे, एंड अगर दिखने बंद हो जाएंगे तो देन इट बिकम्स itself an hazard instead of slowing the traffic. अगर फेड हो जाता है मार्किंग, एज आई हैव डिस्कस विद द मैन्युफैक्चरर्स कि जो भी मटेरियल दे रखा है पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ टाइटेनियम ऑक्साइड पूरा अगर डाला हुआ है तो उसकी लाइफ सफिशिएंट है और 2.5 mm का रखा है, अदरवाइज इट विल गेट फेडेड आउट वेरी फास्ट. जो ये क्रॉस रोड्स है, हाउ इट इज टू बी डन, जो भी डेवलप करना उसको 50 मीटर तक जो मैंने दिखाया था, इट इज टू बी डेवलप्ड लाइक दिस, मार्किंग इज टू बी डन लाइक दिस, सो दैट इट्स अ ड्यूअल पर्पस इज देयर. जब ट्रैफिक क्रॉस रोड से अंदर से आ रहा है तो उसको भी एक ये हो जाता है कि नाउ ही इज गेटिंग इनटू द हाईवे, एंड हाईवे ट्रैफिक को ये नहीं पता लगता है इस जो रोड पे ट्रैफिक आ रहा है उस क्रॉस रोड से आ रहा है, दैट इज ओनली एन अर्बन रोड, फॉर हिम इट इज एन इंटरसेक्शन एंड ही बिकम कॉशियस. ये जो एक अर्बन चैनलाइजेशन के ऊपर कैसे जो मार्किंग करनी चाहिए, दैट हैज बीन शोन, बिकॉज इसमें अब रेलिंग नहीं लगा है तो फ्री फ्लो है, कहीं पर भी लोग कैसे ही जा रहे हैं. ये जेब्रा मार्किंग है, तो जेब्रा मार्किंग लगाए तो सामने अब क्या आ गया, इसमें आ गया कर्व स्टोन आ गया, कर्व स्टोन आ गया, तो देन हाउ ए व्हील चेयर बाउंड पर्सन विल क्रॉस दिस हाईवे. सो इसमें दे रखा है हमारे को वेयर एवर जेब्रा मार्किंग हो वहां पे ये थ्रू व्हील चेयर कैन गो. नाइट रिफ्लेक्टिविटी शुड बी लाइक दिस. नाउ ये रोड मार्किंग जो मैंने बताया था कि चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट किया था, तो ये बनाया था कि कैसे हमारे को 2 लेन पे लगाना है, एंड एवरीथिंग इज एज पर शेड्यूल. ISC 35 से है, कुछ और नहीं है, कि अगर 5.5 मीटर से कम है और 5.5 to 7 मीटर है, देन सेंटर लाइन नॉर्मल सेक्शन में 100 और वार्निंग सेक्शन में 600 लॉन्ग, 300 गैप, एंड नो ओवरटेकिंग जोन में ओनली एंड ओनली कॉन्टिन्यूस लाइन. ऐसे ही इसमें जो है एज लाइंस विल बी कॉन्टिन्यूस, बट इन केस ऑफ 7 मीटर विथ पेव शोल्डर्स, 2 लेन विथ पेव शोल्डर, जनरली जो हम बना रहे हैं 2 लेन्स में, in that case we can always have 150 mm. It is within the provision, we have to only mention it that you have to provide LM02, nothing more than that. We are not doing beyond any codal provision. तो उसमें जो है 150 mm करेंगे एंड 300 एंड 600, 300 लगाएंगे और 600 गैप करेंगे, एंड वार्निंग में 600 लगाएंगे और 300 गैप करेंगे. सो उससे विजिबिलिटी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज नाउ डेज इवन हम 2 लेन या 4 लेन जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो 100 kmph के लिए डिजाइन करें और स्पीड भी हम 100 परमिट कर रहे हैं. सो दैट वे नाउ 150 mm इज रिक्वायर्ड, एंड इट इज एज पर द कोडल प्रोविजन. वी हैव टू मेंशन इट दैट इट विल बी LM02. And finally, the traffic lane, 4 lane, 6 lane, 8 lane, it will be that 150, and the edge line is also 150. उसके बाद जो ये है रेज प्रोफाइल मार्किंग, हाउ मच मार्किंग 4 mm रेज्ड है, 8 mm रेज्ड है, कितना रेज है 6 लेन में, 8 लेन में, अकॉर्डिंगली इट इज बीइंग मेंशन्ड दैट इज अबव द बेसिकली व्हाटएवर edge line marking is. That is not included whatever edge line marking is. Further expressways में दे रखा है, but access control highways it is not specified in any codes, neither 84, 87. So expressway and access control highways में whatever design standard जो भी provision expressways के है, that should be done like 200 mm width and 300 wide and 600 gap normal section में.
जो दिल्ली मुंबई सेक्शन था, जो मिस्टर मुदित गर्ग ने करवाए थे पहले पैकेज में, या सुरेश कुमार जी ने करवाए थे, उसमें 200 mm इज क्वाइट विजिबल। बाद में कम होता है तो वो दिखता नहीं है। सो वी शुड इनवेरेबली फॉलो दिस 200 mm। एंड उसमें जो रेस बार मार्किंग वो 6 mm हाइट होगी, बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेसवे। एट ग्रेड इंटरसेक्शन बिलो ग्रेड सेपरेटर कैसे लगाना है, मतलब जो क्रॉस रोड है वो भी इसमें मार्किंग हमने स्पेसिफाई कर दी है कि कौन सी कैटेगरी के रोड के ऊपर इट्स विड्थ इज 100, 150, 200 mm, whether it is entry exit ramps or it is cross roads or below the intersections। फर्दर मर्जिंग डाइवर्जिंग की लेंथ भी हमने दे दिया है, इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि ऑलरेडी जो कोड में है इट्स सेम ओनली कि कैसे इसको लगाना है। This I was talking about that lane balancing. This has been given only in IRC SP 99, but lane merging diverging is being done in 4-lane also highway, 6-lane highway। तो इसमें क्लियरली डिफाइन कर रखा है, मर्जिंग लेन 3 है तो 2 में लेके आना है, तो एक लेन को क्या करना है, दैट मीन्स आपको डायगोनल मार्किंग से एक लेन को क्लोज करना है, तभी वो 2 रहेंगी। ऐसे ही जो है 2 से 3 करनी है तो कैसे करना है। So that lane balancing there, diagonal marking plays here very important role। Speed limit marking 80, 100, 120, this has been now specified। It can definitely be done on the road surface। जो हमारा रोड मार्किंग प्रपोजल्स है, जो शेड्यूल सी में हमने दे रखा है, दैट इज इट इज ऑलरेडी गिवन। ये पूरा का पूरा हमने लिस्ट आउट कर रखा है, उसकी लेंथ में स्पेसिफाई, नंबर में करिए, रिमार्क्स में दीजिए। आप किसी और तरीके से देना चाहते हैं, अगर इसमें कोई वी हैव टू चेंज इट, सो गिव अस द फीडबैक, आप अपने हिसाब से उसमें दीजिए। बट एवरीथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, बट आई हैव शोन इन 163 स्लाइड्स बिफोर दैट। Now it is required that DPR consultants in DPR, this has to be only included, it will be marked. Once we include into the schedule, it will be definitely marked at site, and the accidents which we then which occurs after opening, that will definitely be reduced, and we are not required to take any that short term measures. Whatever will be there, then it will be only long terms। Thank you very much।